Jai Gurudev children, welcome again in this EVS class. Dear students, we have already started chapter number 7, caring for our homes. So in this chapter, we have completed this first page, and in the previous video I have completed up to these dustbin part. Okay, so today I will explain you from here. Decorating our homes means how we can decorate our home. When we decorate our home with different things, then our house looks so nice. Okay, and if anybody visit at our home, then that people also feel so nice to see the beauty of our house. So we should decorate our home with different type of things. So what are the different type of things that we will study in this part? So here, how to decorate our home. First they have written the walls, doors and windows should be well painted from time to time. Means children, हमें डोर्स और विंडोज़ को हर टाइम टू टाइम के बाद मीन्स एटलीस्ट 1 ईयर में एक बार या 2 years में एक बार पेंट ज़रूर करना चाहिए. Okay, so that they will look nice, clean, neat and clean. The furniture should be polished regularly. और जो फर्नीचर होता है उसको भी पॉलिश करना चाहिए. जैसे ही आप देखो कि आपके फर्नीचर में पॉलिश जो है वो ख़राब हो गई है, या डस्ट से या डर्ट से हम लोग कई बार हर चीज़ को छूते हैं तो उससे भी ये ख़राब हो सकती है. तो हमें उसको रेगुलरली पॉलिश करना चाहिए. देन कर्टेन्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, फ्लावर वासेस, डेकोरेटिव पीसेस, flowers and leaves are also used to decorate houses. Now children, they have written the name of these many items like curtains. When we use curtains in our doors and windows, then the look of our house is totally changed. Okay, so house look nice when we put curtains. And wall hangings, on walls also so many kind of decorative hangings are available in the market, that also we can use for wall hangings. And many kind of paintings also you can use. Then other than that, flower vases, जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो. उनमें आप फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हो अगर आपके अवेलेबल हो तो. अदरवाइज आर्टिफिशियल फ्लावर्स आर ऑल्सो कमिंग with beautiful colors, that also you can use in flower vases. And other decorative pieces also coming in the market, which you can use. And flowers, fresh flowers and leaves also we use to decorate our home. These flowers and leaves, children, we use on the special occasions like Diwali, and if any worship is there at our home, many kind of rituals are there when we used to decorate our home with flowers and leaves. जैसे आप दिवाली पे यूज़ करते हो, दिवाली में हम फ्लावर्स और मैंगो लीव से, मैरीगोल्ड फ्लावर्स आप
उसके गार्लैंड्स हम लेके आते हैं, अपने डोर्स पे लगाते हैं, एंट्रेंस पे लगाते हैं, और जो मैंगो लीव्स होती हैं उनका भी यूज़ होता है उसमें। तो ये इस टाइप की चीज़ों से भी हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। Then in next para they have written, in India it is a custom to draw a rangoli at the entrance of the house। और हमारी कंट्री में, इंडिया में, ये एक रिवाज है कि हम रंगोली बनाते हैं अपने घर की एंट्रेंस में। ओके, आप लोगों के घर में भी बनाते होंगे, जैसे ये रंगोली बनी है। आप देखो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस हम बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस रंगोली ब्रिंग्स हैप्पीनेस। और ये माना जाता है कि इस रंगोली को बनाने से घर में खुशियाँ आती हैं। दिस इज़ मेड डिफरेंटली इन डिफरेंट रीजन्स। और ये जो रंगोली होती है इसको डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिया के ओके रीजन्स में। सो इन द सदर्न स्टेट्स, जो साउथ साइड है हमारी कंट्री का, उसमें इट इज़ कॉल्ड कोलम। और इसको क्या बोलते हैं, इस रंगोली को कोलम। साउथ साइड पे क्या बोलते हैं, कोलम। एंड is in the form of white powdered dots in different shapes। और ये कैसे बनाई जाती है, कोलम जो होती है वो कैसे बनाई जाती है, ये वाइट पाउडर डॉट्स से बनाई जाती है। और ये डॉट्स बना के रंगोली बनाते हैं। जैसे ये देखिए, इस रंगोली में चिल्ड्रन आपको दिख रहा होगा, ये जो ऐसे सर्कल जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये डॉट से बनाया हुआ है। तो जो कोलम रंगोली होती है वो कैसे बनाई जाती है, ये डॉट बना के ही पूरी रंगोली में डॉट से ही पूरा जो है वो पैटर्न बनाया जाता है। पूरा डिज़ाइन ये डॉट के ही फॉर्म में बनाया जाता है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड कोलम। और ये वाइट पाउडर से ही बनाया जाता है। Then in this blue box, special information always written. So, did you know Parsis decorate their floors with pookalam using flowers, and Bengalis decorate their floors with alpana made with a rice paste. So children, here they have written about Parsis and Bengalis। आपको पता है पारसीज जो होते हैं ये एक डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब होते हैं ना, ऐसे ही पारसीज भी होते हैं। तो पारसीज जो होते हैं वो अपने फ्लोर्स को डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स से बनी हुई रंगोली बनाते हैं वो, जिसको वो नेम क्या देते हैं, पूकलम। ओके, और बंगालीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने फ्लोर्स को डेकोरेट करते हैं राइस पेस्ट जो होती है, राइस से वो पेस्ट बनाते हैं और उसको अल्पना बोलते हैं। ओके, सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे हैव रिटन इन अ बॉक्स। सो आपने देखा चिल्ड्रन कि हमारी कितनी सारी चीज़ों से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और डिफरेंट रीजन्स में किस टाइप की लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें यूज़ करके और अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द पेंटिंग्स। You can see here in this picture also they have shown some kind of paintings, structures. So paintings are used to decorate the walls। और पेंटिंग्स को हम यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए, वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। इंडिया इज़ फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स। और हमारा जो इंडिया है वो
हैंडीक्राफ्ट चीज़ों के लिए फेमस है, जो कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप के हैंडीक्राफ्ट्स लोग बनाते हैं। हैंडीक्राफ्ट में हाथ से बनी हुई चीज़ें, ओके। एंड क्राफ्टमैन मेक फिगर्स, मास्क्स, बेल्स, लैम्प्स, wall hangings, wool, thread, paintings, bamboo, clay and many other natural materials। अब देखिए कितने सारे नेचुरल मटेरियल्स को यूज़ करके जो क्राफ्टमैन होते हैं, मतलब जो इन डेकोरेटिव चीज़ों को बनाते हैं, वो किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं, वो करते हैं। और कुछ टाइम पे बेल्स, आपने देखा होगा कि बेल्स की फॉर्म में भी हम हैंगिंग्स को लटकाते हैं, ओके। और जो साउंड भी प्रोड्यूस करती हैं। देन लैम्प्स का भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप की लैम्प्स हम घर में यूज़ करते हैं डेकोरेट करने के लिए। और लैम्प्स भी डिफरेंट टाइप की आती हैं। देन वॉल हैंगिंग भी डिफरेंट टाइप की आती हैं। फिर कुछ वूल यूज़ करके वो निटिंग करके बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव पीसेस को बनाते हैं। देन समटाइम दे यूज़ थ्रेड्स ऑल्सो, जूट थ्रेड्स ऑल्सो, ओके। जूट की भी बहुत सारी वॉल हैंगिंग्स आती हैं मार्केट में। देन पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को पेंट करके और उससे भी हम डेकोरेट करते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें हमें मार्केट में बनी बनाई मिलती हैं, रेडीमेड, ओके। और इनको बनाते जो हैं उनको क्या बोलते हैं, क्राफ्टमैन, क्योंकि ये क्राफ्ट की चीज़ें सारी वो बनाते हैं। देन बाम्बू स्टिक का यूज़ करके बाम्बू से भी हम घर को डेकोरेट करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से घरों में फ्रेश जो ग्रीन बैम्बूज होते हैं उसको भी रखने का एक बहुत ही बोला जाता है कि शुभ होता है वो, तो उससे भी लोग डेकोरेट करते हैं, अपने टेबल पे रखते हैं, सेंटर टेबल में। देन क्ले एंड मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, और बहुत सी आइटम्स क्ले की भी बनी होती है। बहुत से स्टैचूज़ होते हैं, बहुत से ऐसे डेकोरेटिव पीसेस होते हैं जो क्ले से भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके हम बहुत सारी डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है इस वाली पिक्चर में कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के फेसेस बना के उनको डिफरेंटली कलर किया हुआ। सो these kind of materials we can use to make different objects, okay। So children, after this they have given here stretch a while, means draw a rangoli design on a chart paper and color it। You don't use chart paper, you just do it on your in your EVS copy, okay। Name any 2 special occasions on which you decorate your houses। अब सबसे फर्स्ट उन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा वर्क दिया है आपको, कि आपको रंगोली का डिज़ाइन बनाना है चार्ट पेपर पे और उसको क्या करना है, कलर करना है। देन सेकंड क्या दिया है कि कोई भी 2 स्पेशल ओकेजन्स आपको ये बताने हैं, कोई ऐसे मौके जिसमें आप अपने घर को स्पेशली डेकोरेट करते हैं। तो हियर द स्टूडेंट्स हैज़ रिटन होली एंड दिवाली। तो आप इसमें किसी भी पूजा का भी नाम लिख सकते हो जो आपके घर में पूजा होती है स्पेशल, या जिस भी ओकेजन पे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं वो आप लिख सकते हैं, ओके। दिवाली में तो सबके घर में होती है डेकोरेशन। Then write any 3 things that you use for decoration। और आप इनमें से कोई भी here they have given 3 blanks, so you have to write any 3 things, name of any 3 things which you use to decorate your home। means आप जो यूज़ करते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, ऐसी 3 चीज़ों के नेम आपको लिखने हैं। इसमें
जिस भी स्टूडेंट की ये बुक है उसने लीव्स, फ्लावर्स एंड रंगोली लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो कि आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट है चिल्ड्रन पेट्स एंड पेस्ट्स एट होम. सो आपको पता है कि जो एनिमल्स हम घर में पालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्स. जैसे डॉग्स, कुछ लोग डॉग्स को पालते हैं, कुछ लोग कैट्स को पालते हैं, कुछ लोग पैरट्स रखते हैं घर में एज अ पेट. ओके, कुछ लोग रैबिट्स को पालते हैं. तो डिफरेंट टाइप के पेट्स होते हैं. और पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के बिना, हमारी इच्छा के बिना हमारे घर में घुस आते हैं और वो हमारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं. ओके, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं पेस्ट्स. जैसे छिपकली को तो कोई नहीं पालता है, तो लिजर्ड हमारे घर में आ जाती हैं. फिर कॉकरोचेस आ जाते हैं, मॉस्किटोज़, फ्लाइज, स्पाइडर्स. तो ये हमारे घर में आते हैं और हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि ये हमारे घर में आए. बट ये हमारे घर में आके और हमारी चीज़ों को स्पॉइल करते हैं. जैसे लिजर्ड हैं, तो लिजर्ड क्योंकि लिजर्ड्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं. ओके, तो इनसे हमें ये भी डर रहता है कि हमें कहीं काट ना दे वो. और ये जब घर में रहती हैं तो अगर किसी चीज़ में, खाने की चीज़ में गिर जाए तो वो भी पॉइजनस हो जाता है. तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे घर में आए. तो इसलिए लिजर्ड्स भी क्या हैं, पेस्ट्स. देन कॉकरोचेस आर ऑल्सो पेस्ट्स. मॉस्किटोज, कॉकरोचेस हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं. फूड जो होता है, रखा होता है किचन में, जनरली ये खाने वाली चीज़ों के पास ज़्यादा आते हैं और ये गंदी प्लेसेस पे रहते हैं, ड्रेन्स वगैरह में रहते हैं. तो वहाँ से जब वो आते हैं तो हमारे फूड को इन्फेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्म्स होते हैं इनकी बॉडी में चिपके हुए. देन मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज. मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, ये हमें बाइट करते हैं और इससे मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें जितनी भी डिजीज़ेज़ होती हैं हार्मफुल, ये होने का ख़तरा होता है. इसलिए मॉस्किटोज़ भी हमें पसंद नहीं है. देन फ्लाइज़ आपको पता है ये भी हमारी हर खाने वाली चीज़ के ऊपर बैठती है. तो फ्लाइज़ आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस. And they are also called pests. and spiders. स्पाइडर्स जो होते हैं वो हमारे घर में जगह जगह पे अपने वेब बनाते हैं, स्पाइडर वेब बना देते हैं, जाले बना देते हैं, तो जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते. और एंड्स, चींटियाँ, हमारे हर खाने वाली चीज़ों में चींटियाँ आ जाती हैं और कई बार हमें भी बाइट कर देती हैं. तो ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, पेस्ट्स. ओके, so children, this part is about the pets and pests. so हमें ये दो जो इसमें आपके मेन एनिमल्स की कैटेगरी दी है, पेट्स एंड पेस्ट्स आर होम, उनका घर में क्या यूज़ है और क्या ये जो हैं दोनों चीज़ों में डिफरेंस हैं, इनसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी. सो वी विल रीड फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन इसकी बता दी है, बाकी पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. सो वट एवर आई हैव टॉट यू चिल्ड्रन, यू जस्ट रीड इट आउट and try to understand. So Jai Gurudev.